recording now. Okay, so देखिए, this is grade 9 का math. Okay, and let me quickly share my screen also. So this poly is something that stands for multiple. Okay, इसीलिए हम लोगों ने पहले जो सीखा है polygon, that simply stands for shapes with multiple sides. Understanding that in algebra context, what exactly it means. आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Can you guys hear me? Can you guys hear me okay? Veer? Veer, are you able to hear me okay? Yes. Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. All right. तो चलिए आगे भी आए वापस and you guys can hear me and see my screen. तो start करते हैं. तो polynomial that has a poly in it. Poly means okay. So we'll just keep that in mind. Wherever we come across poly, we'll remember that it means many. जैसे हमने देखा ज्योमेट्री में polygon मतलब multiple sides. Here in algebra context, let's try learning this. Do you know what is this called in algebra? It's called algebraic expression. Okay. And when you put an equal to, then becomes an equation. So right now we are talking about algebraic expressions, meaning it just has some constants, some variables into it, but there is no equal to sign. Okay. And let me know if I'm going fast or if I'm making it complicated. Okay. वीर और अंकित आप लोग मुझे बताइएगा अगर कहीं पे मैं फास्ट जा रहा हूँ या समथिंग दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. Okay, sir. So this is an expression. You can also have this also as an expression. You can also have also as an expression. These are all expressions. In algebra, we call it algebraic expressions. Okay, or simply expressions, which has some variables like x, some constants like what you are seeing here. This one, this one, this one. ये सब जो है constants हैं, जिसको हिंदी में चर बोलते हैं. और ये exponents. Here you see power of 2. Here you see nothing but it means power of 1. Okay. Here you see power of 1. These are called degrees. Okay. So Sir, excuse me, sir. let's Sir, can you हाँ just बोल. repeat after that about from sir from the constants that you were saying? Okay. So I'll keep on repeating. Don't worry. Okay. So चलिए let's look at one expression. Okay. So this is nothing but an expression. यहाँ पे देखेंगे all these numbers that you see, these are constants. So any expression will have constants. ठीक है. और साथ में रहेगा variables like x. You are seeing. You can have an expression which says 9y minus 24. This is also an expression. Here constant is 9 and 24. इसको हिंदी में चर बोलते हैं. और y is your variable. तो वेरिएबल y का वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकता है. ठीक है. सो दीज आर एंड दिस इज एक्सपोनेंट जो पावर होता है. ठीक है. सो एनी एक्सप्रेशन विल हैव प्राइमरली थ्री थिंग्स. द सम कांस्टेंट्स like this, some variable
like this. Okay. And exponents मतलब power to the variable. ठीक है, ये तीन ही एलिमेंट रहेगा. Here if you look at this versus this is also an expression, this is also an expression. दोनों में difference क्या है? This has one term, Sir, this has, sir, 2x is a monomo, हाँ, monomial monomial. expression, and second one is a polynomial expression. हाँ, so अभी जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, don't rush. Okay, so I was giving you the concept part of it. Now, so you saw that this has one term. Okay, मतलब एक ही part है इसमें. This one has two terms, मतलब this is one term and this is second term, and they are separated by this operation. Okay, so operation has to be plus or minus. ठीक है, that will help you derive. एक मिनट और थोड़ा स्पेंड करते टाइम. 14x plus 2. अब यहाँ पे देखेंगे जो मैं बोल रहा था, इसमें कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 and 4. You simply count the terms which are actually separated by the plus or minus sign, not equal to and divide. Okay, so यहाँ पे this tells you the terms. Now I'll come back to the point that you were making. Okay, so this expression has four terms. There should not be any doubt about it. Okay, now if somebody says there is an expression 16x to the power 9, how many terms it has? Only one, because there is no plus minus sign, so only one term. If somebody says 29x squared minus 17, how many terms it has? 2, 1 and 2. Okay, इसको लेके क्लियर है आप लोग? Now if there is one term, that is where it is called monomial expression. Okay, if there are two terms, that is where it is called binomial expression. Okay, if you have, let's say, three terms, x cube plus 24x square x minus 17, it has three terms, it is called trinomial expression. Okay, so anything which is more than one is called poly, many. So that is why when you were looking at this was a monomial, and you were saying 24x minus 7 as but polynomial, because it has many, it is more than one. Many का मतलब ही होता है more than one, इसीलिए इसको बोलते हैं polynomial. इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में इवन इसको भी लोग पॉलिनोमियल बोल देते हैं. ठीक है, तो दैट इज हाउ everything becomes polynomial here. The chapter itself is called polynomial, जबकि उसमें they are dealing with single terms also. So ideally that should not be called polynomial, but they call everything as polynomial. But in absolute terms, if you see, if it is single term, that should be monomial. If it is two terms, that it should be called binomial. If there are three terms, that should be trinomial. So two terms onward is what could be called as polynomials. Any questions so far? Ankit, Veer, बोलिए, कुछ डाउट है तो बताइए भाई. नो डाउट? No, sir. ओके, No, sir. चलिए. तो अभी हमने देखा कि भाई बेसिक डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल का. अभी नाउ लेट्स लुक एट another thing, which is degree. I just mentioned degree, right? Let's look at this expression and let's look at this expression.
Here, what is the maximum power of x in the first one? 1. Okay, keep that in mind. Look at this one. What is the maximum power of x here in the second expression? Maximum power of x. 2. इसमें 1 पावर है, इसमें 2 पावर है, तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. इफ आई लुक एट Sir, it is 3, second one. The 3x square after 6x. The one power is also of 6x. So it is 3. So maximum नहीं power नहीं is नहीं 3. नहीं नहीं, you are not adding the power, you are just picking up the term which has a maximum power exponent value. You are not adding the power. Okay. Okay, तो यहाँ पे that is what you have to remember. So that's why I was giving another example. If I have this, the maximum power is 7. If I have, let's say, 3x to the power 9 minus 2x to the power 7 plus 24. इसका इसमें maximum power क्या है? 9. You will always look at the term which has the maximum value of the exponent. ठीक है, तो अंकित ध्यान वही रहेगा कि आपको सारे टर्म्स को देखना है, उसमें देखना है कि वेरिएबल कौन सा है और उसका मैक्सिमम पावर क्या है. ओके, सो दैट मैक्सिमम पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री. ओके, तो अभी फिर से देखिए डिग्री जो हम लोग बात कर रहे थे उसका अगला एग्जांपल है. इफ यू लुक एट 2x plus 17, ये एक्स क्यूब प्लस 24x स्क्वायर, ये और x to the power 7 minus 24 x6 plus x power 5 minus 17 और 18, पता नहीं बार बार 17 लिख रहा हूं मैं. ठीक है, इस वाले में देखेंगे x पे पावर मैक्सिमम कितना है? 1. इसका दैट इज कॉल्ड डिग्री. सो दिस एक्सप्रेशन हैज अ डिग्री ऑफ 1. तो दो चीजें हमने सीखी एक्सप्रेशन के बारे में. वन इज whether it's a monomial, how many terms it has, इसमें टर्म्स कितने हैं, उसी हिसाब से आप मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल बोलते हैं. हिंदी में मुझे टर्म याद है, इसको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी बोलते हैं. राइट अंकित? Yes, sir. तो हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे देयर आर टू थिंग्स अबाउट द एक्सप्रेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर. एक तो है कि इसका उसमें कितने टर्म्स हैं और दूसरा उसका डिग्री क्या है. तो पहले वाले का आप देखेंगे डिग्री इज 1 बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट. दूसरे वाले में जाएंगे आप, देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं. सो पहला वाला और दूसरा वाला में क्या कॉमन है? नंबर ऑफ टर्म्स. दिस इज बाइनोमियल, दिस इज आल्सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सेम है. डिफरेंस क्या है? दिस हैज डिग्री एज 3 because maximum power of x is 3, so this has a degree of 3, this has a degree of 1. so इस दोनों दोनों एक्सप्रेशन में आप देखेंगे क्या कॉमन है? number of terms. Both are binomial expressions, but the degree between the two are different. अब तीसरा वाला को देखिए, इससे बताइए इसमें what type of polynomial it is and what is the degree of this guy. तीसरे टर्म का डिग्री क्या है बताइए. अंकित अभी कोई भी बता सकते हैं. Degree is seventh. Sir, third one. Sir, थर्ड third वन, equation. थर्ड इक्वेशन, थर्ड Okay, एक्सप्रेशन. sir, 6. Sir, 6. नहीं, आपने ये नोटिस नहीं किया. दिस इज 7, डिग्री इज 7. 6 जो है दिस इज सेकेंड टर्म जो कम पावर है. you will always look for the exponent with maximum value, है ना. so इसका डिग्री होगा आपका 7 and this is a polynomial with 4 terms. ठीक है, तो I think you guys have understood this part. तो अभी देखिए डिग्री इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि इस डिग्री का जरूरत आपको पड़ेगा. अगर आप ऐसा देखें 2x plus 7, ओके, अगर डिग्री 1 है, ओके, then this is called linear expression. ओके, अगर डिग्री 2 है, अगर इसका डिग्री है 2,
This is called quadratic expression. ओके, आप लोग देखेंगे आगे चल के काम पड़ेगा, आप लोग लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन वो सब से पाला पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द फाउंडेशन फॉर दैट। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में एक ही अंतर होता है, इक्वल टू का, राइट। तो वट एवर वी आर कॉलिंग एज एक्सप्रेशन, इफ यू पुट अ जीरो आफ्टर दिस, दिस बिकम्स एन इक्वेशन, ठीक है। तो अभी अभी तो इक्वेशन एक्सप्रेशन पे नहीं भिड़ते हैं, लेट्स कीप इट असाइड। लेकिन जो डिग्री आप लोगों को सिखाया था उसका उसका एक कारण था कि व्हेन यू लुक एट द डिग्री, मीनिंग व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, मतलब जो उसमें वेरिएबल है उसके ऊपर कितना पावर है, दैट टेल्स यू द डिग्री। और उस डिग्री के बेसिस पे आप बोलते हैं कि भाई वो कौन सा टाइप का एक्सप्रेशन है। एक तो आप बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, वो तो एक्सप्रेशन का टर्म को काउंट करके बोलते हैं। और डिग्री के बेसिस पे यू एक्सप्लेन की व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इट इज। Linear expression हो when the degree is 1, if the degree is 2 that is called quadratic expression, और अगर degree 3 है that is called cubic expression। तो linear, quadratic and cubic ये तीन से ही हमारा पाला पड़ता है। उसके बाद का पावर जो है वहां तक हम लोग नहीं जाते हैं, unless you guys want to become mathematician in future, okay। उसके लिए बहुत आगे तक का पढ़ाई करना पड़ेगा। let's focus on these three types for now। अभी तक Sir, sir, बोलिए। can you tell me the spelling of the quadratic expression? quadratic, 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 okay। Sir, thank you, sir. या तो आप लोगों ने अभी तक देखा कि भाई पॉलिनोमियल का बेसिक कंस्ट्रक्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, कांस्टेंट होता है। आपने देखा उसके अलग अलग टाइप्स क्या होता है, उसका डिग्री क्या होता है, और उसके बेसिस पे उनका उनका एक्सप्रेशंस का नाम क्या होता है। दैट दैट इज व्हाट वी विल सी वन आफ्टर अनदर। अंकित, और इसके अलावा हमने जो भी पढ़ाई किया था पिछले क्लास में उसको आप लोग उसका वीडियो देख लेंगे तो फिर से रिवीजन हो जाएगा। आई माइट हैव मिस समथिंग दैट यू कैन चेक इन दैट वन, ओके। तो लेट्स गो बैक टू, ओके, आई एम जस्ट चेकिंग। हाँ, ऑलराइट। तो चलिए अभी हम लोग एक देयर आर फ्यू मोर थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न। So as part of this chapter, right, हम लोग और सीखेंगे क्या, we'll do a revision of what is called identities, and then we will learn the factor theorem, which will actually help us create factors of an expression। मतलब आपका अगर मान लिया जाए 2x² plus 16x plus 4 अगर एक्सप्रेशन है, how I, okay, other thing that we are going to learn, okay? उसी के लिए factor theorem, the next part of this chapter is about, we are going to learn So your voice is not coming. okay। Can you guys hear me fine now? Yes, sir. अंकित, मुझे सुन पा रहे हैं आप? Yes, sir. ओके। हाँ, नहीं, मेरा नेटवर्क थोड़ा पैची है, बीच बीच में चला जाता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम दैट आई एम डीलिंग विथ। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स गो टू द आइडेंटिटीज। हम लोगों ने क्या क्या आइडेंटिटी सीखा है, एंड देन वी विल, ऑलराइट। तो पहले बताइए कुछ ऐसा कुछ सुनने को मिले जो कि आपने नहीं सुना हो पहले। Have you guys heard about this before? X plus y whole square equal to x square plus 2x plus y square, x minus y square equals x square plus 2x, sorry, x square minus 2xy plus y square, x plus y into x minus y equals x
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पढ़ा पढ़ा इसे? Yes, sir. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? देयर इज अ टर्म फॉर दिस, Algebra. uh, बोलते हैं अलजेब्रिक एंटिटीज। ये समझिए कि आपका अलजेब्रा का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, आप ये फॉर्मूला से आप कभी आपका जान छूटेगा ही नहीं, मतलब रोज पाला पड़ना है इससे, ठीक है? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तीन बेसिक है, इसके अलावा और भी तीन है, लेकिन पहले इस तीन को समझते हैं अच्छे से, ठीक है? तो देखिए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है? क्लियर? अगर x प्लस वाई का क्यूब रहता है मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, जैसे होता है ना एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होता है x इंटू एक्स, एक्स क्यूब मतलब क्या होता है x इंटू एक्स। उसी तरह से x प्लस वाई को आप एक चीज मान लीजिए, दिस इज वन टर्म, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर मीन्स x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर? Yes, sir. तो अभी देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं कि भाई x प्लस वाई को इसके साथ ही फिर से गुणा किया गया है ना, मल्टीप्लाई किया गया है। सो दिस इज द थिंग। नाउ इसको आपको ब्रेक करना है बेसिकली। कैसे करेंगे? इसका ये मतलब जैसे होता है ना कि 15 इंटू 10 को आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि 10 इंटू 10, या ऐसे नहीं, रुकिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि 15 इंटू 10 मतलब 10 प्लस 5 इंटू 10, है ना? यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 10 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10। ठीक है या नहीं? Yes, sir. ठीक। वीर, आर यू विथ मी? Yes, sir. अगर क्लियर नहीं हो तो बताएंगे, और अगर उसके बाद भी नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। वीडियो बाद में देख करके इसको फिर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो मुझे पूछेंगे, ठीक है? तो आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस व्हाट इज दैट आई एम ट्राइंग टू डू। तो 15 इंटू 10 का मतलब होता है, इसको हम लिख सकते हैं कि भाई 15 मतलब होता है 10 प्लस 5, हम लिख सकते हैं उसको, ये 12 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 5 इंटू 10। तो इसको ब्रेक करेंगे, अगर ब्रैकेट को तोड़ेंगे अगर, तो 10 इंटू 10 करेंगे प्लस 5 इंटू 10 करेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। तो ऊपर जो हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है, उसको भी हम वैसे ही तोड़ सकते हैं जैसे कि नीचे हम लोग ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए, ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका ये मतलब है x इंटू एक्स प्लस वाई, पहला पार्ट हो गया, प्लस यहाँ पे ये वाला y इंटू एक्स प्लस वाई। दिस इज ओके? नॉट ओके? Okay, sir. x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को हम लोग कर सकते हैं कि इसका मतलब है x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दैट्स व्हाट आई हैव जस्ट स्प्लिट दिस, ओके? अब देखिए इसको और तोड़िए फर्दर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस साइन है तो x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है? प्लस देखिए यहाँ पे फिर इसको ब्रेक कर रहे हैं, y इंटू एक्स, इसको वाई एक्स लिख सकते हैं या एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 4 हो या 4 इंटू 2 हो, वैल्यू सेम होता है, तो आप इसको चाहे तो एक्स वाई लिख सकते हैं। वाई एक्स हो रहा है यहाँ पे देख के यू कैन राइट इट एक्स वाई ऑल्सो, प्लस वाई इंटू वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1xy प्लस अनदर xy 2xy, ओके, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? तो जो ये फॉर्मूला आपको हम जो आइडेंटिटी का फॉर्मूला बोल रहे थे, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हवा में नहीं था, देयर इज अ
देयर इज ऑलवेज अ वे टू प्रूव। और मैथ में जैसे बोलते हैं ना, कभी भी कुछ एज्यूम करने का ऑप्शन नहीं होता है। आप मान के चलिए कि अगर कोई बोल रहा है तो वो सही है, और आपको सही नहीं लग रहा है तो करके देख लीजिए उसको, ठीक है। So this is one formula, that's one of the identity. दूसरा आइडेंटिटी हमने सीखा था x minus y whole square equals to x square minus 2xy plus y square. Okay. तीसरा सीखा x plus y into x minus y equals x square minus y square. ये सब कुछ वैसे ही आप जैसे पहला वाला काम हमने किया वैसे ही आप इसका इसका प्रूफ देख सकते हैं करके, ठीक है। और तो अभी फिर से वापस चलते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर। अगर मान लिया जाए आपका एक एक्सप्रेशन है 2x² minus 7x plus 4। अच्छा, आइडेंटिटीज में कोई दिक्कत नहीं ना? वॉट एवर वी सॉ दैट इज ओके, राइट? Yes, sir. ओके, वीर, यू आर क्लियर? Yes, sir. ओके, so we are going back to the expression now. We'll come back to identities again. Okay, तो ये एक एक्सप्रेशन है। what is this? This is a polynomial. It has three terms. We can call it a polynomial. So you can also represent this as a polynomial with variable x. You can write it like this. ठीक है, अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसा है, you can say this is a polynomial expression with variable as x. मान लिया जाए आपका polynomial expression रहता 3y cube minus 24y square plus 7. So this is a polynomial with variable y. So you can always write this as like this. Polynomial with variable y is this. Okay. तो कोई अगर बोलेगा what is the zero polynomial of this expression? So then you can say what is the zero polynomial? So you can put a zero instead of y here, and it will tell you 3 into y cube. Y की जगह पे 0 का cube minus 24 into 0 का square plus 7. So what will be the value of this polynomial for a value of 0? For 0, it will be 7, because this will be 0, this will be 0. So this will be 7. So you can always, so basically expression जो है, this always tells कि you can always write कि भाई ये expression मेरा अगर x का expression है तो अगर ये expression है तो you can also denote this as this. Okay, तो p of 1 will be, आप x की जगह पे 1 लगाएंगे तो this will become 3 into 1 का square minus 7 into 1. So this becomes 4 minus 4. अब कोई तो this is what you will end up dealing with. So the next thing that we are going to do is learn about factorization. कैसे फैक्टर्स निकालते हैं? अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है 24x minus 12, इसको आप दो फैक्टर बना सकते हैं। कैन यू ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स व्हिच इज लाइक a into b? फैक्टर का मतलब ये होता है So कि your screen is, sir, I'm not able to see your screen. Excuse me, sir, I'm not able to see your screen. ओके, अंकित आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. आपको स्क्रीन दिख रहा है? तो let me do one thing. Let me stop sharing and start sharing again. Let's see उससे कुछ फायदा होता है कि नहीं। चलिए मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ और बताइएगा if you are able to see it now. Yes, sir. आ गया. ओके, वीर आपको दिख रहा है स्क्रीन? No, sir. अभी व्हाइट स्क्रीन को दिख रहा है? Yes, sir. No, no, sir. It is only written your name. अच्छा, तो दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है आपके साइड में। फिर एक काम कर सकते हैं वीर, यू प्रॉब्ली माइट वांट टू डिस्कनेक्ट एंड जॉइन बैक अगेन। ट्राई कीजिए। Okay, sir. हम्म
तो अंकित ये बताइए कि आपको फैक्टर थ्योरम पता है? नो सर, नहीं पता है, ओके। अभी आप बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है। हम्म नहीं, फैक्टर थ्योरम अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, बट विल गो टू दैट। अच्छा वीर, अभी बताइए, आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. ओके ओके, चलिए, दो वी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अभी देखिए, फैक्टर, अगर कोई चीज का फैक्टर क्या होता है, या इसको हिंदी हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर का मतलब ही होता है गुणनखंड, मतलब समथिंग दैट इज कमिंग विद मल्टीप्लिकेशन साइन। ओके, तो अगर आप मान लीजिए 20 है, अगर इसका अगर फैक्टर निकालना हो तो आपको पता है कि 20 यू कैन राइट एज 1 into 20, 2 into 10, 5 into 4, ये हो गया। तो इसके फैक्टर्स हो गए 5, 4, 1, 2, 10 और 20। ये सब इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यू कैन राइट दिस एज, लेट्स से आपको 10 का नंबर देखने में मजा आता है, तो यूल से ओके, दिस इज हाउ आई वांट टू फैक्टराइज इट। सो आई कैन राइट 20 एज 10 into 2। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। उसी तरह से आपको अगर इच्छा हुआ कि भाई चलो नहीं 5 into 4 लिखेंगे, तो भाई 5 and 4 आर टू फैक्टर्स दैट यू हैव ऑलरेडी सीन। So basically, factorizing anything means breaking it into two parts as a multiple। ठीक है, तो अभी देखिए, थोड़ा खेलते हैं इसके साथ। सो 24x - 12 अगर है, एक्सप्रेशन है ये, राइट? दिस इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, राइट? और यू कैन कॉल इट पॉलिनोमियल आल्सो, इट हैज टू टर्म्स। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है, इसको दो पार्ट में बांटना है। क्योंकि ले देखिए, सारा खेल ये होता है ना कि भाई आपको एक्सप्रेशन रहेगा, इक्वेशन रहेगा, उससे एक्स का वैल्यू निकालना है, जो अननोन है वो निकालना है, या फिर आपको एक ये वैल्यू को किसी और वैल्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। दैट इज व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू। सारा सारा खेल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के आसपास ही घूमता है, राइट? विद डिफरेंट सिचुएशन वी डू डिफरेंट थिंग्स। नाउ अगर मान लिया जाए आपको ऐसा है, एक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है। व्हाट यू सी हियर इज 24 and 12, they both are in the table of 12, मतलब 12 का टेबल में आता है। तो एटलीस्ट आई कैन टेक दिस थिंग आउट, दिस इज समथिंग कॉमन फॉर श्योर। I can say this 2x minus 1, correct? यस सर। Veer, are you with me? देखिए, 24 को I can write this 12 into 2, right? So that's what I just took the common things out. I found 12 is common in first term and second term, so I took 12 out. So I'm left with 2 into x in the first term and only 12 into 1. Yes, sir. This one is clear. Sir, I think I'm facing some network issues. Okay, but you can agree with what I'm saying, right? एंड वीर, अगर आप कुछ नहीं देख पाए या कहीं पे कुछ नेटवर्क का दिक्कत हो गए, तो एनीवेज यू हैव द वीडियो एट योर डिस्पोजल, यू कैन वॉच इट आफ्टर द क्लास, और मुझे पूछिएगा अलग से इफ यू हैव एनी डाउट। ठीक है, तो ये तो सिंपल था कि भाई चलिए 24x - 12 में 12 कॉमन दिख गया, आपने निकाल लिया फैक्टर। अगर मान लिया जाए आपको ऐसा सिचुएशन रहता है x² + 14x, तब क्या करते? यहाँ पे क्या कॉमन था? x कॉमन था। आप x को बाहर निकाल लीजिए, x + 14, तो दो फैक्टर निकल गया। ये यहाँ पे आपने फैक्टराइज कर दिया। यू कैन से दिस इक्वल्स x into x + 14। नाउ अब देखिए, जो आइडेंटिटीज को हम लोग देख रहे थे, x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 2xy + y²। वैसे x - y का होल स्क्वायर भी था। इसमें देखिए क्या देख रहे हैं डिफरेंस। हियर यू आर सीइंग टू वेरिएबल्स, x और y। अभी तक जो हम लोग एक्सप्रेशन के साथ डील करते थे, वहां पे एक ही वेरिएबल था, मोस्टली एक्स या वाई के साथ खेल रहे थे हम लोग। बट इफ यू हैव टू वेरिएबल्स टू डील विथ, दैट इज वेयर दिस आइडेंटिटी कम्स इनटू पिक्चर। ओके, तो अब देखिए, मान लिया जाए आपको कोई बोलता है 2x² + 16xy + 32, इसको फैक्टराइज कीजिए। क्या करेंगे? हालत खराब। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी विल हेल्प यू।
टू को बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग हमसे पूछिए नहीं, आप लोग बताइए, बिकॉज व्हाट यू विल डू इन योर 8 फ्यूचर। 16। ठीक है, अब देखिए, अरे 16 हम पूरा गड़बड़ कर दिए थे थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो 2x² + 16xy + 32y² था। ठीक है, आपने क्या कहा, 2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लिया भाई। तो अब बच गया, ओके। तो अब बच गया आपका x² + 8xy + 16y²। अब देखिए इसमें ध्यान देने का क्या है, दिस इज x², एक है, एक x² है, यहाँ पे x इंटू 2x कर दीजिए अगर, 4y ऐसा है। और ये वाला पार्ट जो है, यू कैन ऑलवेज राइट दिस एज 4y², राइट। तो यहाँ पे x है और y की जगह पे 4y है, ऐसा आप देख रहे हैं। सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन और दिस एक्सप्रेशन एज, यहाँ पे आपको हमेशा थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हम क्या खोज के निकालेंगे। इसको आप, यू कैन राइट दिस एज x + 4y²। 2 तो आपका है ही है। अब इसको x + y² के फॉर्मूला में फिट कीजिए, देखिए क्या होता है। x + y² was equal to x² + 2xy + y²। तो x के जगह पे x है, y की जगह पे 4y है, तो क्या होता है, x² हो गया, y की जगह पे 4y है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4y, सो 2 इंटू 4 8 इंटू xy 8xy। ठीक है, यहाँ पे ठीक है ये। और y² की जगह पे, y की जगह पे आपका 4y था, तो 4y का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 16, y इंटू y² 16y²। तो दिस वाज एक्चुअली अ फॉर्मूला 2 इंटू x + 4y का होल स्क्वायर। तो हमेशा जो है आपको एक्चुअली वो आइडेंटिटीज जो है ना, x + y² x - y² x + y इंटू x - y, वो, और उसके अलावा फिर आपको कल 3 टर्म भी आएगा कि x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है। तो x + y + z का होल स्क्वायर कितना होता है, दिस इज इक्वल टू x² + y² + z² प्लस 2 इंटू xy + yz + xz। ऐसा होता है, ये हम बोल रहे हैं, इसको मानने का जरूरत नहीं है। आप इसको सेम तरीके से करेंगे अगर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको x + y + z, x + y + z, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, x को इससे पूरा से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस y को पूरा से मल्टीप्लाई कीजिए, z को पूरा से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखेंगे यही वैल्यू आएगा, नहीं आएगा तो टीचर गलत। ठीक है, तो ये दूसरा एक्सप्रेशन आया। इसी तरह से ये दूसरा आइडेंटिटी आया, और भी आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, अब जैसे कि एक और भी आएगा, x + a इंटू x + b विल बी इक्वल टू x² + ab + a + b इंटू x। ठीक है, तो ये सब एक्सप्रेशन आपको हेल्प करेगा, ये सब आइडेंटिटीज आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व द फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए कुछ कुछ सवाल को देख, एक और चीज है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम। आप लोगों को पता है उसके बारे में कुछ, वीर और, देखिए फैक्टराइजेशन थ्योरम को एकदम सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए आपका एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू, कुछ भी मान लिया जाए, कुछ भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है px, तो बोलता है क्या, x - a, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है फॉर द वेरिएबल x। ठीक है, x - a विल बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब px विल बी
मतलब x माइनस ए, x वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, दिस विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब मान लिया जाए कि कुछ भी वैल्यू होता है, क्यू ए मान लिया जाए, कुछ भी एक वेरिएबल, कुछ भी एक एक्सप्रेशन है, इट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ दिस इफ p ऑफ a इक्वल 0। कॉम्प्लिकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं सिंपल तरीके से कि आपका एक पॉलिनोमियल है px, मतलब कुछ भी होगा, मान लिया जाए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 मान लिया जाए, ये आपका एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बोलता है क्या, x माइनस a will be a factor of this polynomial expression if p of a equal to 0। ये है थ्योरम, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल थ्योरम, अब फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, तो चलिए मान लिया जाए आपको अगर पता करना है कि इसका फ्रैक्शन x माइनस एक फैक्टर x माइनस ए है या नहीं, तो कैसे करेंगे, लेट्स लुक एट वन सम, ओके, तब उससे ही क्लियर होगा। देखिए इसको एक सम को देखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को मेरा पीपीटी दिख रहा है? यस सर। पहला सवाल पकड़ते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और उसका क्वेश्चन बोलता है ये है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्स प्लस 1 एज अ फैक्टर, ओके। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं सवाल पे, एक ही सवाल करेंगे, ज्यादा नहीं। फिर ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा, अगले क्लास में भी हम लोग कर सकते हैं। कोई ज्वाइन किया है लग नहीं? ओके, चलिए। तो ये पूछा है हमसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, उसका फैक्टर x प्लस 1 है कि नहीं है। अब यहां पे देखिए फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, x माइनस ए विल बी अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो अभी यहां पे देखिए प्लस काम कीजिए, p ऑफ a निकालिए, a क्या है यहाँ पे, x प्लस 1, x माइनस ए, फैक्टर x माइनस ए बोल रहे हैं यहाँ पे, माइनस ये जो 1 है प्लस 1 को माइनस ए से, माइनस ए इज इक्वल टू प्लस 1, पहला से आप ये रिप्लेस करेंगे चेक करने के लिए। तो आपका फॉर्मूला ये बोलता है एक्स माइनस ए विल बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में था एक्स प्लस 1 निकालना था, मतलब माइनस ए के जगह पे प्लस 1 है, यानी कि ए का वैल्यू इज इक्वल टू -1, ठीक है। हाँ बोलिए बेटा। ओके, तो ए का वैल्यू -1 है, ठीक है। अब इस ए का वैल्यू को इस ये आपका जो पॉलिनोमियल है इसमें फिट कीजिए। ये पूछ रहा है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, और x प्लस 1 यानी कि x माइनस ए हमारा जो थ्योरम है उसमें हम फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि a का वैल्यू हो गया -1। अब -1 के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिए, इफ x इक्वल टू -1 तो क्या होता है, दिस विल बी -1, दिस विल बी +1, this will be -1 and this will be +1। इसका पूरा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाता है 0, मतलब p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, थ्योरम क्या बोलता है, इफ x माइनस ए विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो हमने a का वैल्यू निकाला इसके हिसाब से, यहाँ जो क्वेश्चन था x प्लस 1 में a का वैल्यू निकला -1, -1 के लिए हम लोग इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाले, दैट कम्स 0। तो अगर, तो यहाँ पे ये पता चला कि x प्लस 1 विल बी अ फ्रैक्शन और अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकॉज p ऑफ a या यहाँ पे -1 इज 0।
इस थ्योरम के हिसाब से पता चलता है कि दिस विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस। आई नो दिस माइट साउंड क्रिप्टिक, इसीलिए हम लोग इस क्लास को अगले वीक में भी करेंगे। विल कंटिन्यू ऑन दिस वन, विल डू लिटिल मोर प्रैक्टिस सो दैट वी आर एबल टू रिलेट। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग दो काम करेंगे, फैक्टराइजेशन पे काम करेंगे और जो फैक्टर थ्योरम है उसके ऊपर कुछ और सवाल भी करेंगे, बिकॉज जब थोड़ा और सवाल करेंगे तो वो थ्योरम जो है उसको डाइजेस्ट करने में आसानी होगी और तब हम उसको रिलेट करके कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में प्राइमरली दो चीज हम करने वाले हैं। एक तो, सॉरी नॉट इस क्लास में, अगले क्लास में, कि एक तो जो फैक्टर थ्योरम है उसको थोड़ा और, उसका थोड़ा और गहन अध्ययन करेंगे, उसमें अंदर घुसेंगे थोड़ा, उसको अपनापन बनाएंगे उसके साथ में, एंड देन आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। सो बेसिकली वीर, आपके लिए ये रिक्वेस्ट है कि पिछला जो क्लास का वीडियो था और आज के क्लास का वीडियो दोनों को एक बार फिर से देखिएगा और ट्राई रिलेटिंग द कॉन्सेप्ट्स, एंड देन in the next class we will do some sums on factorization, factor theorem, to make sure, or and use identities to get a complete view of this particular chapter, which is polynomial. ठीक है अंकित, आपके लिए भी सेम है, पिछला वीडियो Sir. इस क्लास का वीडियो Okay, देखेंगे sir. और जो भी समझ में आया नहीं समझ में आया उसको नोट भी करते रहेंगे, बिकॉज वीडियो देखने में मजा तो जरूर आएगा, लेकिन जब तक नोट नहीं करेंगे, उसको खुद के साथ रिलेट नहीं करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बाकी सवाल अगले क्लास में हम लोग रिवाइज करते हैं एंड दैट विल क्लियर लॉट ऑफ डस्ट फॉर अस। ओके, अब मतलब बेसिकली सम्स करेंगे ना, तब देन यू विल टू रिलेट। अभी क्या है कि अभिरेन सर कुछ बोल दिए अपने समझ के हिसाब से, पता नहीं उसका क्या मतलब है, एंड दैट्स नेचुरल, ऐसा होता है। तो हमको उसके अंदर में घुसना पड़े, मतलब पानी के अंदर कूदेंगे तो तभी आपको गहराई पता चलेगा, है ना। ऑलराइट, चलिए, तो वीर और